Rajiv doesn't know her, eating patterns, her, sleeping patterns. He doesn't know anything about her because I had to work. और जौहरी ख़त्म हुआ था उसके बाद में अभी 3-4 महीने हो चुके हैं तो I had to do something because for obvious reasons trying to cope up with everything कभी कभी थोड़ा सा break down हो जाता है, you feel exhausted, you feel frustrated, but I think now we are on a better position जहाँ पर we don't expect anything. I think we're becoming friends. तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ज़ियाना को लेके ऐसे अलग हो सकती हूँ. I think औरत को हर जगह पे जज किया जाता है. हम कितना भी बोलें कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है, बैक टू बैक मेरे ऊपर I would say लांछन लगाए जा रहे थे. Hello everyone, I'm Gayatri Nirmal and today's guest is someone who is fierce, strong and independent, and finally she has found her own way. Please welcome Charu Asopa. Thank you, Gayatri. Thank you for having me here. Welcome to Pink Villa. With back-to-back projects on your plate, can we say that professionally you are feeling gratified? Yeah, sometimes, but I'm nervous also because, every time I get something, I have to leave my daughter behind, and then go for the shoot. So it's a mixed feeling, I can say. It's a mother's guilt. Right? Yeah, of course, yes. So when you go to your sets, who takes care of Zyana? So there's a nanny, but recently I asked Rajiv also to be there with her because I couldn't take her for my shoots. So yeah, because that was my first day and I didn't know about the arrangements, about the makeup rooms. How will I keep her there? So yeah, I took Rajiv's help. Okay, so is he being there when you are not around? Yeah, because अभी तो 2 दिन ही shoot हुआ है, so I asked him to be there with her. But then, but now onwards, I'll take her to my shoots. Okay. Yeah. So, is there arrangement on your set over there for her? Yeah, she'll be fine. Normal arrangements, but then. Okay, I just want to ask if Rajiv has, like you said, if you asked him and he's agreed to be there for her, then why, do you want to take her to the set? Like, because the atmosphere on the set won't be that comfortable for her to. Yeah, but if she's around me, at least I know, what's happening to her because Rajiv doesn't know her, eating patterns, her, sleeping patterns. He doesn't know anything about her. So, it's better कि वो मेरे साथ रहे तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है कि उसको ठंड कब लग रही है, उसको गर्मी कब लग रही है, जनरल थिंग्स जो एक माँ को पता होती है मेरे हिसाब से, तो वो सब मेरे हिसाब से कंफर्टेबल रहेगी वो. Okay. Yeah. So, you played negative characters in the past and in this show also you are playing a negative character. But Charu, आपको देखकर कोई मतलब ऐसे सोच ही नहीं सकते कि negative character आप play करोगे या किसी की life में havoc create करोगे जैसे shows में होता है. तो how do you do that? मेरा last show जो था मेरे अंगने में उसमें मैंने negative play किया था. बट उसके बाद में मैंने सोच लिया था कि मैं नेगेटिव्स नहीं करूँगी बिकॉज़ वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वो शो जब ख़त्म होता है तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर से जाने में थोड़ा टाइम लगता है. और मेरे अंगने में माई कैरेक्टर वॉज वेरी नेगेटिव, मतलब कि मैं शो ख़त्म हो गया उसके बाद में भी उसमें से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नेगेटिव नहीं करूँगी. बट दिस टाइम बिकॉज आई हैड टू वर्क और जौहरी ख़त्म हुआ था उसके बाद में अभी 3-4 महीने हो चुके हैं तो आई हैड टू डू समथिंग बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट. So how is life now as an actor who is also a single mother and has to provide for the family financially, emotionally? How are you doing all of this? I'm trying to cope up with everything, कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है, यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, बट देन यू हैव टू डू इट. तो एक स्माइलिंग फेस के साथ करते हैं. So when you feel emotionally vulnerable, you feel low, exhausted, who is your go-to person? Nobody. I think Zyana only. When I see her, she's my motivation, she's my strength. तो जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है. Now we are on a better position जहाँ पर we don't expect anything. I think we're becoming friends. And साथ के साथ हम ज़ियाना की केयर भी दोनों मिलकर कर रहे हैं. तो I think अभी जो है वो अच्छा है. अच्छा है. कहीं लगता है दिल में ऐसा कि काश ये पहले होता तो. बहुत लेट हो गया अभी ये सब बोलने के लिए. So let's not talk about that. But अभी जो है ठीक है, अच्छा है.
Okay. So you don't want to talk about it, but Rajiv has spoken about it and he said that he hopes to reconcile with you for Ziana. Your thoughts about that? I don't know. पता नहीं. I can't say anything about it, you know. अभी तो कुछ कह नहीं सकते because this is too early. तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो पता नहीं वो क्या सोच के बोल रहे हैं. तो इतनी जल्दी कैसे, अभी तो 8 जून को तो हमारा डिसीजन हुआ है. तो अभी शायद वो इमोशनली थोड़ा उसमें भावनाओं में बह के बोल रहे हैं शायद. Okay. You know, it's always said that you realize the worth of a person or anything in life after you've lost it. Do you think that is what's happening? अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है. तो इसलिए हमें बोलते हैं ना, एक हिंदी में एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो इसीलिए जब प्रॉब्लम्स हो रही होती है उसी टाइम पे आपको सेटल करना होता है. एक बार बात आपके हाथ से निकल गई फिर बहुत देर हो जाती है. Right. So, you know, when you were going through this entire, you know, the trouble in your marriage phase and all, how did you keep yourself strong? And you were pregnant, you had Ziana. नहीं, मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. मैं धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन मेरे लाइफ में आते गई, उनसे फाइट करते करती, तब मुझे पता चला कि मैं इतना फाइट कर सकती हूँ. मुझे खुद मेरी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता था. तो आई थिंक भगवान मुझे कहीं से वो पावर, वो स्ट्रेंथ देते गए और मैं आगे बढ़ती गई. मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ज़ियाना को लेके ऐसे अलग हो सकती हूँ. बट देन आई थिंक तो आपने ये भी कहा था कि आपको घर नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चैलेंजेस आ रहे थे. दैट्स व्हाई आई सेड दैट एक्टर्स को तो वैसे भी घर मिलने में मुश्किल होती है. हाँ, बिल्कुल. यू आर अ सिंगल मॉम नाउ, तो व्हाट हैपेंड लाइक? मैं घर ढूंढ रही थी क्योंकि मैं जिस घर में रह रही थी वो एक छोटा घर था और ज़ियाना जैसे जैसे बड़ी हो रही तो उसको भागने दौड़ने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए. तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस और मतलब इट वॉज रियल स्ट्रगल. मैं कहीं पे भी जाती थी तो सारी बात ठीक से हो रही होती थी. लास्ट में जब उनको पता चलता था कि हम माँ बेटी रहने वाले हैं घर में, तो कोई पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड, तो मैंने कहा नहीं, हम 2 ही रहने वाले हैं. तो दे यूज्ड टू रेज देयर आईब्रोज एंड देन घर, बाद में घर पहुंचती थी तो मैसेज करते थे, या तो वो घर के रेट्स बढ़ा देते थे, रेंट बढ़ा देते थे, या बोलते किसी तरह भी पता चल जाता था कि इट्स नॉट गोना हैपन. सो इट वाज अ रियल स्ट्रगल. और उसके बाद में जब ये वाला जो घर में जिसमें मैं रह रही हूँ, दीज ओनर्स आर वेरी गुड. तो जब वो लोग मुझे मिले, उनकी भी एक बेटी है, तो जब वो लोग मुझे मिले तो बड़े अच्छे से उन्होंने सब समझा मेरी बात को. एंड देन दे आर वेरी गुड. Isn't it disheartening that even today, in today's time and age, you get those judgmental looks and I think औरत को हर जगह पे जज किया जाता है. हम कितना भी बोलें कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है या So is life getting on track slowly and smoothly with you going on work and everything? Yes. So मैं जब से अलग हुई हूँ तब से आई थिंक मुझे 6 से 7 महीने हो गए हैं. तो धीरे धीरे करते करते आई थिंक नाउ थोड़ा ट्रैक पे आने लगी है. आई एम वर्किंग, उसके बाद में थोड़ा यूट्यूब भी कर रही हूँ, आई एम डूइंग अदर कैंपेन्स ऑल्सो. तो हाँ, चल रहा है. You've lost good amount of the post-pregnancy weight that you had, and it's commendable the way you have done. Like, Thank you you. were alone, you had to take care of your work, you were struggling for a house, and at the same time, you lost your weight. So, where do you get this motivation from? मैंने बोला ना आपको, मेरा मोटिवेशन ज़ियाना ही है, मेरी स्ट्रेंथ भी वही है. तो आई थिंक अगर मैं कर पा रही हूँ तो थैंक्स टू हर कि वो मुझे इतना टाइम दे दिया उसने कि मैं थोड़ा वर्कआउट कर पाई, थोड़ा खुद पे ध्यान दे पाई. नहीं तो इतने छोटे बच्चे तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. तो वो 1 घंटा जो मुझे उसने बीच में वर्कआउट के लिए दिया, थैंक्स टू हर. तो ये जब YouTube पर आप वीडियोस बनाते हो, तो हाउ इज ज़ियाना, लाइक शी इज कंफर्टेबल विद द कैमरा नाउ एंड शी नोज व्हाट्स हैपनिंग? हाँ, नाउ तो शी अभी मैं बैठी हुई होती हूँ तो मुझे फ़ोन उठा के देती है, चलो कुछ शूट कर लो. अभी बोल नहीं पाती है, पर वो इतना उसका है कि उसको टीवी देखना है तो वो रिमोट उठा के मुझे देगी, फ़ोन उठा के देगी कि चलो कुछ कर लो. सो इतना वो करती है. तो अभी वो जो उसकी छोटी छोटी हरकतें देखती हूँ तो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है. नया कुछ करती रहती है.
So she says mama and all. हाँ, मम्मा पापा दादा ये सब बोलती है वो. Okay. हाँ. And about her schooling and all, have you thought about that? Schooling, The I think play school. प्ले स्कूल, हाँ, आई थिंक 2 साल में स्टार्ट करेंगे. साल तो में. हाँ. Acha. And tell us something more about your character in this show. सो दिस इज़ नेगेटिव कैरेक्टर, जहाँ पर यू नो एक डेली सोप है. स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है. यू नो ऐसे सब लोग बोलते हैं कि स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, पर एक्चुअली डिफरेंट है. क्योंकि ये शो में ऑलरेडी मैरिड हूँ एक यू नो हमारे हीरो से. तो जो मेरी एक बेटी है वो मेरे हस्बैंड के साथ रहती है. अच्छा. और ये पूरा स्ट्रगल है कि यू नो कैसे मैं अपनी बेटी को मिलती हूँ या क्या होता है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा शो देखने पे. Okay. So now I have this one last question. Yeah. Throughout your career, personally and professionally, did you come to a point where you felt you regretted making your personal life public because people have easy access to say anything without, you know, they're quick to judge? Yes. Yeah, so एक्चुअली मैं ना कभी भी ऐसे करना नहीं चाहती थी कि यू नो मैंने एक इंटरव्यू दिया था बहुत पहले, बट बैक टू बैक मेरे ऊपर यू नो आई वुड से लांछन लगाए जा रहे थे, झूठ बोला जा रहा था. तो बैक टू बैक, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ और कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी बार, तो बैक टू बैक 3-4 चीज़ें मेरे बारे में बोली गई. तब मुझे जाके बोलना पड़ा बिकॉज यू नो आई स्टे विद माई डॉटर. और जब लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो मेरी बच्ची बड़ी होकर दिखेगी ना वो सब, तो इसलिए आई हैड टू गिव दैट इंटरव्यू. उसके बाद में भी लोग नहीं रुके हैं ऑब्वियसली, बट मैंने अपनी तरफ से अपनी बात रख दी जो मुझे लग रहा था कि ज़रूरी है. बट या ये सब नहीं होना चाहिए था बिकॉज जियाना अब बड़ी होगी और इंटरनेट पे अगर कुछ एक बार आ जाता है तो कभी वापस नहीं जाता. तो बड़ी होगी वो सब देखने वाली है, वो सब सुनने वाली है, तो मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी. बट आई थिंक मेरी बच्ची समझदार होगी और यू नो मैं should be a I'm sure she would prefer to see you do all these things for her in the growing up years rather than believing the news that is there outside. Yeah, hope so. Yeah. Thank you so much for being such a great sport. Hi, this is Charu Asopa and you're watching me on Pink Villa.